The International Forum for Promoting Homeopathy has homeopathic lovers, doc students, and doctors as its members. And we have 3 sessions in a row every day. 7 to 8, we have our Hindi session, 8 to 9, our English session, that is international session, and from 9 to 10, local language session in Malayalam. As you all know, today our guest is Professor Dr. Sami Chakar, MD, Homeopathy. Dr. Sami Chakar is the Dean, Dr. Badras Academy, and has vast academic and practical experience with various colleges and universities in India and abroad. He has conducted numerous seminars on homeopathy in Australia, New Zealand, Canada, USA, Malaysia, Belgium, London, Turkey, and other countries. He has graduated in 1992 and completed his post-graduation in 2005. He has completed post-graduation diploma in addiction treatment from Canada. In addition, he has successfully completed HMD and PG Home from London and fellowship from MUHS. He has been teaching and practicing homeopathy in India and has been associated with Dr. Badras for the last 10 years. He has also handled uh, the post of head training and served as the chief homeopathy consultant with the Badras Homeopathy. Dr. Samis endorsed the spread of benefit of homeopathic education through Dr. Badras Academy, and he is having a session tonight for the first time to the webinar, and we proudly welcome Dr. Samir Chakar, the professor from Badras Homeopathy. Welcome, sir. You can have the presentation for the next 45 minutes, and there will be a 15 minutes discussion thereafter. Thank you, Dr. Dhanesh, and thanks to IFPH for giving me the opportunity to share my little knowledge, my little experience on this eminent website and a web organizer. So thanks a lot, Dr. Dhanesh, again, and welcome all. I'm seeing that there are a lot of participants here, and I also attended the Hindi session by Dr. Sani. It was really very good, very, very knowledgeable. So, as you introduced me, I am Dean of Dr. Batra's Academy in Mumbai, India. And we are at the Academy, we are promoting postgraduate webinar based courses from Maharashtra University of Health Science. So, we are doing courses in dermatology, cosmetology, respiratory, allergies, and oncology. So, anybody, any senior homeopath, junior homeopath, whoever, any homeopath who's interested in kind of improving and upgrading his knowledge just like a CME, these are the best courses because these are like 3 months, 6 months, 1 year courses, very very crisp, so anybody can do them. So I've been practicing homeopathy and teaching homeopathy in India and abroad since last 30 years, and I also come across the usefulness of batch flower remedies, and I'm a batch flower registered practitioner from UK. So I have done all the levels of batch flowers with the UK back center, and I also use a lot of batch remedies. आपको मालूम होगा, you must be using batch flowers along with your practice also, and you must be knowing how useful they are. So I have a lot of friends in who are using flower remedies, and this will be a good session of interaction where we can, all interact regarding the usefulness of batch flowers. So, sir, can I share my screen, please? Yes, sir. Your co-host. You can do it, sir. Yeah, that's true. So now you can see my screen, right? Yes, So, sir. Slide is visible, sir. so today we're going to talk about autism and batch flower remedies. Now, of course, we all know that homeopathy is an excellent modality for autism, but I have started also using a lot of batch flowers, and I have found the usefulness of batch flowers in autism. So let us quickly go through what is autism. I'll just put this on. Is the slide moving? Can you just tell me, Dr. Dhanesh, sir? No, it is the first page itself, Dr. Badras Homeopathy. It's not moving, right? I noted. Okay. Put it in slides so that
Begin. Okay. Oh, okay, sir. Okay. Hmm. So, as all of you know, that autism is a neurodevelopmental condition, and it is different in different children. You see a lot of symptoms of autism, but no two children are alike. Remember that. So, what are the few characteristics of autism which we all know? Just a repetition. First thing is these children are, kind of repetitive and restrictive behaviors. They are always having some repetitive action. They are highly focused. They are interested in behaviors which are a source of comfort and predictability for them. So many of the times you'll see the hands flapping, or they are looking at one object, they're running around, doing the same things again and again. So it is a repetitive, fruitless activity. Remember, it's very, very important. Second is the problem with communication. They cannot communicate, they do not have interaction skills, they cannot interpret what is going on around, social cues, eye contact, or engaging in reciprocal conversation. They also cannot maintain relationships, or it is very difficult for them. Next is delayed speech and learning difficulties. Their speech and learning, there is a difficulty. They cannot speak. Many of them, they start speaking, but they start regressing also due to some events, maybe vaccines, fever, infections, antibiotics, whatever. But many a times the mother is going to say that मेरा बच्चा ठीक तरह से चल रहा था, चलना शुरू हुआ था, बोलना शुरू हुआ था, पर क्या हुआ, कुछ फीवर हो गया या वैक्सीन दे दी और वो वापस पीछे जाने लगा. सो रिग्रेशन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन ऑटिज्म. और ये रिग्रेशन हमें जानना है, और होम्योपैथी में और बैच फ्लावर में ये रिग्रेशन पे अगर आप देते हो तो नेवर वेल सिंस, जो हमें को एलन स्कीनोट ने बताया था, नेवर वेल सिंस टाइफॉइड, नेवर वेल सिंस इन्फ्लुएंजा, नेवर वेल सिंस एक्यूट डिजीज, उसके ऊपर हम लोग होम्योपैथी दे सकते हैं. ठीक है. उनमें काफी मूड स्विंग्स होते हैं. देयर लॉट ऑफ मूड स्विंग्स, इमोशनल मेल्टडाउन्स, एक्सप्लोसिव मूड्स. They can become really very irritable, so biting, cutting, spitting, all these things, just like our belladonnas and cuprums and lycopodiums, remember, nux vomica, right? Sensory issues होते हैं, so they are either hyposensitive or they are hypersensitive. Remember that. So either there is a hyposensation of maybe touch, noise. So even some touch में hyposensation ऐसा होता है कि they cannot allow anybody. They would like to cuddle everybody. They would like to touch. They would like to kiss. There might be children who wouldn't like to be touched at all. So aversion to touch भी हो सकता है. So there is hypofunctioning or hyperfunctioning of any of the senses. Another thing is strict routinistic. They have aversion to change, which is very very important. कोई भी चेंज उनको पसंद नहीं. जो उनका लाइफ चल रहा है, जो थाली में खाना खाना है, जो स्पून में खाना खाना है, वही चाहिए उनको. उसी टेबल पे बैठना है, उसी चेयर पे बैठना है. रेस्टोरेंट में भी जाना है तो उसी टेबल पे जाना है. दूसरे कोई टेबल पे नहीं जाएंगे, अदरवाइज मेल्टडाउन और टेम्पर टैंट्रम्स हो जाएंगे. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड हमें बैच फ्लावर में ऐसे रेमेडीज मिलेंगे जो ये सिम्टम कवर करते हैं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, एंजाइटी बहुत होती है, कोमॉर्बिडिटी होती है. समझो ऑटिज्म के साथ एडीएचडी भी हो जाता है, ऑटिज्म के साथ डाउन सिंड्रोम भी हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन भी हो जाएगा. इसके लिए ऑटिज्म इज अ स्पेक्ट्रम. लेफ्ट टू राइट आप अगर देखो तो लेफ्ट साइड पे आपको समझो डाउन सिंड्रोम जैसे मेंटली रिटार्डेड भी दिखेंगे, राइट साइड पे एकदम इंटेलिजेंट एस्पर्जर सिंड्रोम वाले भी दिखेंगे. सो ऑटिज्म एक स्पेक्ट्रम है, उसके लिए दवाइयां भी अलग अलग चलती है स्पेक्ट्रम पर. ओके. So, in this intricate world of autism, understanding and addressing the emotional challenges with empathy and personalized approach, such as batch flower remedies, may offer invaluable support. Now, batch flower remedies, everybody knows that they are after Edward Batch, and he was also a homeopath. He discovered this system in 1930, and these are 38 flowers. They are flower essences. फ्लावर्स को जो वाटर में डाले जाते हैं, फिर सनलाइट को एक्सपोज कर जाते हैं, और उनके द्रव्य, ये जो उनका जो इसेंस होता है, वो हम यूज करते हैं. एंड दीज आर यूज ओनली फॉर इमोशनल प्रॉब्लम्स. रिमेंबर, बैच फ्लावर्स आर नॉट फॉर फिजिकल प्रॉब्लम. बैच फ्लावर्स आर ओनली फॉर इमोशंस and feelings. But that doesn't mean that they are not good for physical problems. If a person is coming to you with migraine or knee joint or any other problem, even cancer, look at what his emotions are. Look at what his feelings are. And emotions are very limited. Remember, there is fear, anger, jealousy, loneliness. These are few emotions which are always there. And remember, based on these emotions, you can select the remedies, and you can give these remedies even in combination. Up to 6 remedies, flower remedies, according to emotions, can be mixed and can be given to children, adults, old people, anybody. Remember that. Okay. So let's look at the first remedy in batch flowers, which I would think the first remedy for autism, because these are the children who cannot express. Remember, these are the children who do not speak. Most of them are non-verbal children, so they are not able to speak. So they have difficulty in communication.
inside they feel something, outside they are not able to express, and this is the first remedy that you will think. Agri money जो अंदर रहता है, बाहर एक्सप्रेस नहीं कर पाते. They avoid confrontation, they avoid conflict. जैसे हमने मेरा नाम जोकर में देखा था, जैसे जोकर होते हैं, जैसे एयर होस्टेसेस होते हैं, मन में कुछ और होता है पर बाहर हंस के दिखाना पड़ता है. शायद उनके पिताजी, शायद भाई या कोई मर भी गया होगा, तो भी उनको ड्यूटी पे जाके हंसना पड़ता है. यही एग्री मनी की मेन एसेंस है, अगर हम एडल्ट्स में देखे जाए तो. बट अगर ऑटिज्म में देखना है तो एग्री मनी को हम देखते हैं कि ये चिल्ड्रन अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, बोल नहीं पाते, अंदर मेंटली टॉर्मेंट होते हैं बट बाहर नहीं बोल पाते. सो दैट इज ऑल एग्री मनी इज ऑल अबाउट. सो थिंक ऑफ एग्री मनी फॉर नॉन वर्बल चिल्ड्रन who are not able to express their emotions. They are withdrawn, they are inside. Remember that. Next remedy is impatience. जैसे मैं impatience बोलता हूँ. Impatience itself, the word suggests that they are very, very impatient. And you see, hyperactivity is one of the most important symptoms of autism, especially the hyperactive kind of autistic children. So they are nervous, impulsive, running from here and there, temper tantrums, lack of concentration. जैसे कि मोटर लगी होती है, तो अपना ट्यूबरकुलिनम है, टैरेंट्यूला है, नक्स वामिका है, क्यूप्रम मेटालिकम है, मर्क्यूरी है, ये सब रेमेडीज प्लस एक बैच फ्लावर रेमेडी आप दे दो. समझो इंडिकेटेड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी मर्क दे दी या ट्यूबरकुलिनम दे दिया, उसके साथ इम्पैटियंस दे दो, तो सोने पे सुहागा. सो इट विल बी अ डबल शॉट एंड द पेशेंट विल कम अप वेरी वेरी फास्ट विद फास्ट रिलीफ. रिमेंबर, कांस्टेंट स्टीमिंग होता है इन बच्चों में. जैसे ऑटिज्म में हम देखते हैं बच्चा ये उनका चलता रहता है. दिस इज नोन एज कांस्टेंट स्टीमिंग. रिमेंबर, सो इसके लिए भी इम्पैटियंस बहुत अच्छी रेमेडी. नेक्स्ट रेमेडी इज वॉलनट विच इज अ लिंक ब्रेकर. रिमेंबर, बच्चा जब भी स्कूल चेंज करता है, बच्चा वेन एवर द चाइल्ड changes his residence, changes his school, changes his locality, there is a shock to him, there is a shock to the system. और ये लिंक ब्रेक है वही प्रॉब्लम्स करता है. सो वॉलनट इज अ लिंक ब्रेकर रेमेडी. इट हेल्प्स इंडिविजुअल्स टू अडेप्ट टू चेंजेस एंड ट्रांजिशंस. रिमेंबर, वॉलनट में ऑफर सपोर्ट इन एडजस्टिंग टू सिचुएशंस लाइक चेंज इन स्कूल, चेंज ऑफ एनवायरनमेंट. ऑल्सो हेल्पफुल हु आर हाइपर सेंसिटिव टू इन्फ्लुएंसेस, लाइक कोई भी नॉइज सेंसिटिविटी हो, टच सेंसिटिविटी, जो मैंने आपको पहले ही कहा था ऑटिज्म में हाइपो और हाइपर फंक्शनिंग होती है of all the senses, जिसके लिए walnut is a very very good remedy. So they are unable to adapt नहीं कर पाते, चेंज को अडेप्ट नहीं कर पाते, तभी आप वॉलनट दीजिए. बच्चे, माँ बोलेगी जब से ये चेंज हो गया है, जब से उसको वैक्सीन दी है, जब से उसको इंजेक्शन दिया, उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हो गया है. थिंक ऑफ वॉलनट. वॉलनट विल बी अ वेरी वेरी गुड रेमेडी फॉर लिंक ब्रेकिंग. रिमेंबर, स्पेशली इवन मेनोपॉज, मेनोपॉज है, मेनार्क है, प्यूबर्टी है, कोई भी चीज में शादी होके लड़की कोई दूसरे घर पे चली गई, एडजस्ट नहीं कर पा रही है, थिंक ऑफ वॉलनट. सो एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम्स है, थिंक ऑफ वॉलनट. ओके. नेक्स्ट रेमेडी इज रॉक वाटर. ये एक्चुअली फ्लावर नहीं, ये रॉक पे से आने वाला पानी है. दिस इज अ रॉक वाटर. बट रॉक वाटर का मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिजिडिटी. जो मैंने आपको ऑटिज्म में कहा था कि ये बच्चे बहुत रिजिड होते हैं, थॉट्स में, एक्शन में, उनको वही करना है. दे वुड लाइक टू डू वॉट एवर दे वॉन्ट टू. दे विल जस्ट नॉट मूव. खाना खाना है तो इसी चेयर पे खाना है, गाड़ी में बैठना है तो इसी सीट पे बैठना है. सो दिस रिजिडिटी can be taken care of by rock water. So lot of rigidity, lot of fixity, lot of aversion to change. Think of rock water. Very, very, very important. Okay. नेक्स्ट रेमेडी इज बीच. बीच इज ऑल अबाउट इंटॉलरेंस. जो बच्चों को बहुत सारी एलर्जीज होती है, जो बच्चे कुछ खाना नहीं खा सकते, जो बच्चे कुछ सब्जियां ही खाते हैं, कुछ चॉकलेट ही खाते हैं, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा. थिंक ऑफ बीच, जो इंटॉलरेंस के लिए रेमेडी. रिमेंबर दैट दे आर वेरी वेरी पिकी ईटर्स, दे हैव सेंसिटिविटीज एंड एलर्जीज, they have got a lot of aversions and dislikes. दे आर वेरी वेरी जजमेंटल ऑफ सेल्फ एंड अदर्स. अथॉरिटी से प्रॉब्लम होता है उनको, टीचर्स के पास जाते हैं, टीचर की बात नहीं मानेंगे, डिफाइंट होते हैं. सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. बीच इज अ जस्ट लाइक नक्स वामिका. रिमेंबर, जो हमारा नक्स वामिका रेमेडी है वैसी बीच रेमेडी. इंटॉलरेंट है, आर्सेनिक है, सीना है, कैमोमिला है, दीज आर इंटॉलरेंट रेमेडीज. हिपार्सल, वैसे ही बीच भी होती है. So think of these remedies along with flower remedies, and then it makes your task much more easy. Remember, rather than just giving a placebo या जस्ट दो तीन दवाइयां यहाँ वहां देना है, उससे अच्छा एक कॉन्स्टिट्यूशनल देके हम एक या दो तीन फ्लावर रेमेडीज भी दे सकते हैं और हमारा रिजल्ट्स अच्छे आ सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट रेमेडी चेस्टनट बर्ड. अगेन ये बच्चों को प्रॉब्लम होता है कंसंट्रेशन का. दे आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट, दे आर नॉट एबल टू फोकस. माँ बोलती है कि क्लास में जाता है, लिख नहीं पाता, उसका ध्यान कहीं और चला जाता है, बोर्ड पे लिखा है वो लिखता नहीं, अटेंशन डेफिसिट है, ऑब्जर्वेशन नहीं है, रिपीट करता है. चेस्टनट बर्ड उनके लिए है जो मिस्टेक्स कमिट करते रहते करते रहते करते रहते, जो सीखते नहीं है. जैसे हमारे बराइटा का, आप कुछ भी सिखाओ सीखते नहीं, कुछ भी बढ़ाओ पढ़ाओ सीखते नहीं है. So chestnut bud is for those people who just cannot learn even after committing the same mistakes again and again in their life. So think of autism also for this chestnut bud.
where the people cannot focus, cannot attend, cannot observe, cannot pay attention to anything. Chestnut but very very important remedy. नेक्स्ट रेमेडी इज वाटर बॉयलेट, जो अकेले रहता है बच्चा, अलूप रहता है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता, एक जगह पे बैठना है, मेरा बच्चा किसी के साथ मिक्स ही नहीं होता, उसको मैं ग्राउंड पे लेके जाती हूँ तो वो सब लोग खेलते रहते हो, ये अकेला बैठा रहता है, किसी के साथ मिक्स नहीं होता, ऐसे लगता है कि इसको कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। बट इंटरेस्ट नहीं है, प्रॉब्लम ऑटिज्म में ये है कि वो मिक्स हो नहीं पाता, उसको समझता नहीं कि कैसे मिक्स होना है उसको। सो देर इज अ प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिकेशन, प्रॉब्लम ऑफ ओपननेस, दे अपीयर एज इफ दे आर आउटकास्ट, दे अपीयर डिस्टेंट, बट वैसे होते नहीं, रिमेंबर दैट। दे आर they are not social, they are not emotional, they appear as if asocial, remember. So ये बहुत अच्छी रेमेडी है अगर आपका बच्चा मिक्स नहीं होता पर। ओके, नेक्स्ट रेमेडी इज रॉक रोज। नाउ रॉक रोज और रॉक वाटर में आपको याद रखना है, मिक्स नहीं करना है। रॉक वाटर है वो रिजिडिटी के लिए है, सेल्फ डिसिप्लिन के लिए। रॉक रोज है वो टेरिफिक फियर के लिए। जैसे तीन रेमेडीज है फ्लावर रेमेडीज में, मिम्यूलस, फियर ऑफ नोन थिंग्स, अगर मुझे अंधेरे का डर है, ऊंचाई का डर है, गिरने का डर है, तो डर जो मुझे मालूम है उसके लिए मिम्यूलस है। डर जो मुझे मालूम नहीं है उसकी रेमेडी है एस्पेन। और डर खौफ के जैसा है, टेरर है, पैनिक है, मैं पागल हो जाऊंगा, पैनिक अटैक आ रहा है, मैं प्लेन में जा रहा हूँ तो मुझे समझता नहीं क्या करना है, थिंक ऑफ रॉक रोज। तो आप समझ जाओ, मिम्यूलस है, एस्पेन है और रॉक रोज है। तीन इंटेंसिटीज पे फियर है, फियर ऑफ नोन, फियर ऑफ अननोन एंड टेरिबल फियर, टू मच टेरर। ओके, तो ये बच्चों में भी ऐसे होता है, टेरर होता है, डर होता है, लॉट ऑफ फियर, लॉट ऑफ, एंड देयर इज लॉट ऑफ वायलेंस ऑल्सो। जो कोई भी चीज जो बहुत ज्यादा हो उसके लिए आप रॉक रोज दे सकते हो, बहुत ज्यादा से एक्सपेक्टेड हो तो रॉक रोज दे सकते हो आप। नेक्स्ट इज हेदर। अभी वाटर वायलेट था, वो किसी से मिक्स नहीं हो रहा था, किसी से बात नहीं कर रहा था। हेदर तो है, वो सबके पास जाके बात करेगा, पहचान नहीं है तो भी बात करेगा, और इतना बात करेगा कि सामने वाला कुछ बात नहीं कर सकता। सामने वाला बोलेगा अरे भाई चुप हो जा, कितना बात करेगा, बस अपने ही बारे में बात करेगा कि हमारे बारे में सुनेगा। तो दैट इज हेदर। जो दूसरे में जाके अपना खोदते हैं, बटन होल्डर बोलते हैं उनको। बटन होल्डर का मतलब दूसरे का सुनना नहीं, मैं अपनी हाक हाकता रहूंगा, अपनी ही बातें करता रहूंगा, यार भाई मैंने ये किया, भाई मैंने वो किया, डोमिनेट करना, दूसरे के कॉन्वर्सेशन हाईजैक करना, राइट। सो दीज आर द पीपल हु हैव इनएबिलिटी टू लिसन टू। ऐसे बहुत सारे बच्चे दिखेंगे आप, जिनको हम सोचेंगे ये कैनाबिस इंडिका है, इसको सोचेंगे लैकेसिस है, बातू नहीं है, बहुत लोकवाइसिस है, बट उसको हैदर भी दे सकते हैं। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑटिज्म में भी ऐसे बच्चे हमें दिखेंगे, ठीक। नेक्स्ट इज वाइन, जो डोमिनेटिंग बच्चे, बहुत डोमिनेटिंग बच्चे, जो दूसरे की मानेंगे नहीं, जस्ट लाइक अवर लाइकोपोडियम्स, रिमेंबर। They are very, very strong-willed, demanding, anti-authoritative, demanding, my way or highway. That is how the child is. मेरी बात मानो, नहीं तो मैं टैंट्रम फेरूंगा, इधर उधर अपने आप को फेंक दूंगा, अपने सर को पटकूंगा अगर मानोगे नहीं तो, थ्रेटन करूंगा। जो मैं बोलूंगा वही करना चाहिए मम्मी डैडी तुमको, मुझे आइसक्रीम चाहिए तो अब भी चाहिए, नहीं दोगे तो मैं इतना धमाल करूंगा कि सब लोग आगे पीछे जमा हो जाएंगे। दैट इज वाइन। सो रिमेंबर वाइन फॉर ऑटिस्टिक चिल्ड्रन। नेक्स्ट इज क्लेमेटिस, जो अपना शेख चिल्ली है, मुंगेरी लाल के सपने, बस हाँ मैं ऐसे करूंगा ऐसे करूंगा, फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट से उड़ के फ्यूचर में चले जाते हैं, प्रेजेंट में ध्यान नहीं होता। जैसे अपने तारे जमीन पे मैं बच्चा था, वो जब भी क्लास चल रही थी तो बाहर स्पैरो को देख रहा था कि स्पैरो कैसे उड़ रही है। सो टोटली लॉस्ट, टोटली एब्सेंट माइंडेड, एक जगह पे नहीं। और इसके लिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज फॉर ऑटिज्म, बिकॉज ऑटिज्म के बच्चे ऐसे ही होते हैं, अपनी ही दुनिया में होते हैं। सो थिंक ऑफ क्लेमेटिस फॉर दोज पीपल वेयर द मदर सेज दैट ये अपनी ही दुनिया में रहते हैं। उसको हम लोग चिल्लाते हैं, अरे भाई किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, नहीं अपनी ही दुनिया में।